Hello students, in earlier classes you completed the concepts about the chapter in the EVS. 5 chapters you have already complete, and we are revising the chapters, and then we will be understanding the assignments for the copies. ये EVS चैप्टर में से आप 5 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं. अब हम क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें रिवीजन में हम कर रहे हैं. उसके बाद हम इससे ये देखेंगे कि हमें कॉपीज़ में लिखने जो भी लिखना है उसका हमें किस तरीके से लिखना है. ये मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊंगी और आपको उसी तरीके से अपनी कॉपीज़ में लिखना है. और उसके पहले एक छोटा सा आपके लिए रिविजन्स हम लेंगे चैप्टर्स में से, ताकि आप लिखेंगे जब तो आपको क्लियर हो जाए पूरा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए. ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं. ऑलराइट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू. यू हैव टू कंप्लीट द ब्लैंक्स. द क्वेश्चन इज वी हैव sense organs. How many sense organs are there? You have 5 sense organs. We can sense the types of taste. Which type of tastes are there? Sweet, then we have sour, then we have bitter, and then we have, so various types of taste are there. Whenever you are eating something, you are able to understand that which type of taste is here. Alright, then it is the largest sense organ we have. Which is the largest sense organs you have? You should understand it's the, what is the largest sense organ? आप के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आप टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरह का, जैसे आप स्वीट कर सकते हैं, बिटर टेस्ट आपको मालूम होता है. देन आपको लार्जेस्ट जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है आपका? आपका जो स्किन होता है वो आपके पूरे हर जगह होता है स्किन, तो वही आपका लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है. ऑलराइट, then we can identify types of sounds with our ears. हम अपने कानों से ही आवाज़ समझ सकते हैं. Then we are able to we are looking at the beautiful world with the help of our eyes. Right, so these are the answers. You can see it very clearly here for you. I have written the answers. You can write the clear answers, and then you can write it in the rough copies or in the revisions. Alright, these are the answers for you about the filling the blanks, and this is the complete the blanks. Alright, then after filling the blanks, you have completed filling the blanks, then we have the matched columns, or you can say completing the about the questions related to your taste. Alright, for example, if you eat a bitter gourd, that means करेला. अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं आपको पता होगा उसका टेस्ट कैसा होता है. तो आप चिप्स खाते हैं तो इट्स सॉल्टी, राइट. आइसक्रीम खाते हैं क्रीमी लगता है आपको, और वो स्वीट भी होता है. और लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है, सोर होता है. एंड उसके बाद चॉकलेट्स आपकी स्वीट होती हैं. सो दिस इज टाइप ऑफ अ taste. I have written answers for you. See, I have written the answers clearly for you. It's sweet, then sour, then bitter, then again sweet. Alright, these are the answers for you. 5 questions in the about the taste, and then you have completing the blanks, and there is another question for you. Here you have to write by rearranging the words. Are you understanding the question? ये आप इसमें आप लेटर्स इधर उधर हैं, इसको सही तरीके से आपको लिखना है. अब आप देखिए, इसमें आपको ये समझना है कि ये लिखा क्या है. आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं और मुझे मैसेज करने हैं. जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए अभी ये सब, और कंप्लीटिंग द ब्लैंक्स, ये आप अपने आप से करिए. उसके बाद मुझे मैसेज करिए कि आपने कंप्लीट हो गया है आपका. आंसर्स आप पहले नहीं देखेंगे, पहले आप अपने आप कंप्लीट करिए. उसके बाद जो मैंने आंसर्स लिखे आप उससे एक बार देखिए कि आपका सही है या नहीं है. ऑलराइट, इसके बाद अब हम आंसर्स में आपको इसके भी बता दे रही हूँ. देखिए, हमने जब रीअरेंज किया तो हमारे पास इस तरीके से आया आंसर्स. दीज आर द आंसर्स फॉर यू. शोल्डर, then the forehead, then the fingers,
then thigh, ankle, toe, alright. Then see, you have elbow, you have tongue. So these are the answers for the question. In the question, you have to arrange the words and write the correct meaning here, alright, or the parts here. ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको पार्ट्स रीअरेंज करना थे और ठीक से यहाँ पे लिखना था. ये आपका ईविस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ. और इसको फिर हमने ये आंसर देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा हुआ है. तो ये आपके आंसर्स हैं. ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए. आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप, इसका मतलब आपका रिविजन हो चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है. आपको बताया हुआ है माय इंट्रोडक्शन लिखने के लिए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन दी कॉपीज, ये आपको बताया जा चुका है. अब आप लिखेंगे ये क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपीज. ये एक छोटा सा रिवीजन है, या आप इसको एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए और इसे समझिए. ऑलराइट. अगर इसमें आप लगता है आपको कि ये नहीं आपको समझ में आ रहा है और कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं. दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू to clear the concept about the chapter which we already have completed in the earlier classes. And this is the first chapter, and in the fair copies you will be writing about my introduction and the important words in the chapter. So this was all about your chapter 1 revision. In another class you will be revising the another chapter. All right. Thank you.